Assalamu alaikum. Today we will start next chapter, next topic, that is second order derivative of NCERT book class 12th. Class 12th. Second order derivative means we have to go for two times differentiation. First, we calculate dy by d of x, right? This is the first order derivative, right? Then over this we again differentiate with respect to x, and that is said to be second order derivative d square y by d of x square, right? Suppose let's take this function y is equal to log of x, right? We know its differentiation. Dy by d of x, the first derivative is 1 by x, that's the reciprocal of the argument. 1 by x can be written as x raised to minus 1. Now here, if I want to take its double derivative, it means that we have to go for d by d of x of dy by d of x, right? This is d square y by d of x square. So this is d by dx of, dy by d of x that we have calculated in the first setup, that is x raised to minus 1. So its derivative would be, so this is in exponent form, x raised power n form. So minus 1 will come in front, into x raised power minus 1, 1 would be decreased from the power. So this is minus 1 raised power minus 2, right? Minus 1 into x raised power minus 2. So this actually minus 1 divided by x square, right? Now one more question, so simple. So one more question of this topic is a very important question, maybe asked in the examination, that is y is equal to e raised power x sine of 5x. So there are two functions in product. So obviously for the first derivative, I will use the product rule of differentiation. Product rule of differentiation, what that says, first into differentiation of second plus second into differentiation of first. So dy by d of x would be first function is as it is, right, into differentiation of second. So second is this function, means this is second function and this is first function, right? Now then it is second function, right, into differentiation of first function. Now e raised power x is there. Now differentiation of sine of 5x. First, this is composition of actually two functions, so I will use the chain rule here. First, the differentiation would be for sine, that is cos, right? Then into the differentiation of 5x की differentiation 5 आती है, वो 5 मैंने सामने लिखी है, प्लस अब यहाँ पे देखिए आप e raised पर x की differentiation जो है वो e raised पर x ही है, ऑलरेडी हमने किया हुआ है, ठीक? into differentiation, सॉरी यहाँ differentiation नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट आएगा sin of 5x, तो ऐसे ही आएगा, और differentiation जिसकी है वो है e raised पर x, वो तो e raised पर x की differentiation e raised पर x ही है. अब इस वाले सेटअप में और इस वाले सेटअप में e raised पर x मैंने कॉमन निकाला है, बाकी क्या रह गया 5 cos of 5x प्लस sin of 5x, राइट? ये तो मैंने पहली डेरिवेटिव निकाली. अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे. जो सेकंड डेरिवेटिव का यहाँ पे मतलब है, आप देखिए यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव का जो मतलब है डी स्क्वायर वाई बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका मतलब एक्चुअली है डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि जो हमने ऊपर डी वाई बाई डी एक्स निकाला है उसी की डिफरेंशिएशन करनी है. तो डी बाई डी एक्स जो है वो तो ऐसे है ही. अब जो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स हमने ऊपर निकाला है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शन जो है ना वो भी प्रोडक्ट में, पहली फंक्शन तो ये है और दूसरी फंक्शन ये पूरी है ब्रैकेट के अंदर, सेकंड फंक्शन. अब इनको मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं अगेन प्रोडक्ट रूल करूंगा, प्रोडक्ट रूल, राइट? तो वो क्या बोलता है, फर्स्ट ऐसे ही लिखा है मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. अब e raised पर x तो वैसे है ही, अब इसकी मेरे को डिफरेंशिएशन करनी है, तो 5 तो ऐसे ही आएगा. डिफरेंशिएशन ऑफ cos कितनी आएगी, माइनस साइन ऑफ 5x
इनटू डिफरेंशिएशन इस 5x, तो इनटू 5, तो 5 कितना हो गया 25, तो मैंने वही 25 इधर लिखा है। अब माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि क्योंकि साइन की डिफरेंशिएशन जो है, सॉरी कॉस की डिफरेंशिएशन जो है वो माइनस साइन है, राइट। अब यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे साइन की डिफरेंशिएशन जो है वो कॉस ऑफ, हाँ ये तो इसकी हो गई प्लस हाँ इसकी डिफरेंशिएशन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन की कितनी है, cos ऑफ 5x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5x, दैट इज 5, तो वो क्या आएगा 5 cos 5x, सो 5 cos ऑफ 5x। अब प्लस ये तो ऐसे रहेगा कि किसकी डिफरेंशिएशन तो करनी ही नहीं है, तो ये मैंने ऐसे ही लिखा। अब डिफरेंशिएशन यहाँ पे करनी है पहली वाली फंक्शन की, दैट इज e रेज़ पावर x, उसकी डिफरेंशिएशन तो e रेज़ पावर x है ही, यानी कि मैंने ये लिखा है डी बाई डी ऑफ x, e रेज़ पावर x जो है उसकी डिफरेंशिएशन e रेज़ पावर x ही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में e रेज़ पावर x जो है वो कॉमन निकाल दिया, बाकी मैंने अंदर लिखा 25 sin ऑफ 5x प्लस cos ऑफ 5x प्लस cos ऑफ 5 टाइम्स cos ऑफ 5x प्लस sin ऑफ, अब यहाँ पे आप देखिए 5 cos x हो गया 10 cos ऑफ 5x। अब ये -25 5x है, साइन ऑफ 5x है, ये साइन ऑफ में यानी कि ये -25 है प्लस 1 है, तो वो -24 आ गया। हम यहाँ पे 2 कॉमन निकाल सकेंगे क्योंकि ये 2 इंटू 5 एक्चुअली है, तो ये 2 इंटू 12 है 24, तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैंने सामने लिखा, तो यहाँ 5 रहेगा, राइट, तो यहाँ पे 12 रहेगा, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, डन। और एक क्वेश्चन है इसी पैटर्न का, दैट्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। अब y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x जो है, तो इसको भी डबल डेरिवेटिव करना है, तो पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे। अब tan इनवर्स की डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जो हमने किया हुआ है इनिशियल से भी किया हुआ है, दैट इज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर्गुमेंट का स्क्वायर, राइट, तो x स्क्वायर यहाँ पे आएगा। तो ये तो पहली डेरिवेटिव है ही जो हमने निकाला। अब सेकंड डेरिवेटिव का मतलब ये होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी ऑफ एक्स, उसका मतलब डी बाई डी एक्स उसकी निकालनी है जो आपने डी वाई बाई डी ऑफ एक्स यहाँ पे निकाला है, इसकी डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स तो है ही, राइट। अब डी वाई बाई डी ऑफ एक्स मैंने यहाँ पे निकाला है, तो वो अंदर दिखा है, तो अब मुझे सिंपली इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए तो ये कोशेंट रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल क्या बोलता है, डिनोमिनेटर स्क्वायर, राइट, तो जितना भी डिनोमिनेटर है, देखिए ये हमारा डिनोमिनेटर है और ये हमारा न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर मैंने कर दिया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए, आप डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, अब 1 जो है वो कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन हमेशा 0 है, पड़ा है। फिर माइनस फार्मूला के हिसाब से -1 इंटू इसकी डिफरेंशिएशन। अब इसकी डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा, यानी कि मुझे डिफरेंशिएशन करनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, तो ये पहले हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1, तो अलग हो जाएगा, फिर प्लस आएगा ये वाला प्लस, फिर डी बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ फिर से कांस्टेंट आ गया, तो 0 0 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स रेज़ पर n की फॉर्म का है, तो एक्स स्क्वायर की क्या आएगी 2x, तो 0 प्लस 2x इज 2x, तो इसकी डिफरेंशिएशन पूरी की आएगी 2x, राइट, तो ऊपर आएगा -2x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, खत्म। और एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, बिल्कुल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, तो इसमें कैसे आएगा हमारा, तो यहाँ पे आप देखिए, तो पहला डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा, तो पहली फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी तो cos ऑफ इट्स आर्गुमेंट, ठीक, साइन की डिफरेंशिएशन तो है ही cos इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है ना, तो चेन रूल लगेगा, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 by x है, तो ये आएगा cos ऑफ log x डिवाइड बाय x। अब यहाँ पे ये क्वोशंट में आ गया, अब जब मैं दूसरी डिफरेंशिएशन करूंगा उसमें क्वोशंट रूल लगेगा, तो वो क्या बोलता है, डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब पहले तो मैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दूंगा, फिर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है उसकी डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक, यहाँ पे आप देखिए इस वाले में माइनस न्यूमरेटर है ही इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक।
तो डिनोमिनेटर स्क्वायर तो वैसे है ही x। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से फिर चेन रूल लगेगा क्योंकि cos है फिर log है, कंपोजिशन में है, तो cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ log x आएगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x, दैट्स 1/x। अब यहाँ पे माइनस cos x तो ऐसे है ही, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 होती है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक। अब ये x और ये x तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा माइनस साइन ऑफ log x माइनस कॉस ऑफ log x डिवाइड बाय x स्क्वायर, माइनस माइनस को कॉमन निकालो तो क्या रहेगा, साइन log x प्लस कॉस ऑफ log x, ठीक, डिवाइड बाय x स्क्वायर, ठीक है ना। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही हम करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।